A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed the last unit of your syllabus, that is in computers in accounting. As well as you can see that in the last few videos we discussed the uses of computerized accounting system in the field of the accounting as well as the computers in accounting. Due to some unavoidable reason, in the last video we discussed the basic problem related to your online classes, that is in basic principles, concept and convention, as well as the concept of receipts. So in this video let's we discuss about the computers in accounting, and कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के, और आज हम लोग ऑलमोस्ट इट इज एन लास्ट वीडियो, last class related to the computers in accounting, and thereafter we will move to the next unit of your syllabus. Okay, so first of all revise कि हम लोगों ने last video में क्या क्या डिस्कस किया है. First of all we discussed in the last video that is in computerized accounting system, in which we discussed the concept of computerized accounting system, features of computerized accounting system, basic requirement of computerized accounting system, and the comparison between the manual accounting system and computerized accounting system. और हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में that is an advantages of computerized accounting system, limitation of computerized accounting system, and sourcing of accounting software. Sourcing of accounting software is a process by which we install the accounting software in our computerized accounting system, and there are basically two needs by which we source the accounting software. That is when the computerized accounting system is implemented to replace the manual system, and number second is when the current computerized system needs to be replaced with a new one in view of changing needs. Okay, and if we are talking about the chapters, second last chapter of your syllabus, that is in computers in accounting. So उसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि what is the meaning of the computer in respect of the accounting. So basically कंप्यूटर की जो आइडियल मीनिंग होती है वो तो आप लोग क्लास 7-8 में पढ़ लेते हो, लेकिन जो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो इस तरह से कि इट इज एन यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम रॉ डाटा को प्रोसेस करते हैं एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए. जैसे कि अगर आपको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, सो फर्स्टली यू इनपुट द डाटा and at last you find the financial statement and financial report of the business at the end of the year. As well as computer is a combination of the hardware and software which convert the meaningful and desirable information. यानी कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं एक मीनिंगफुल एंड डिजायरेबल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में. और हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर कंपोनेंट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर में. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन वेयर, प्रोसीजर, डाटा, कनेक्टिविटी. सो बेसिकली इन चीजों पे हम लोग थोड़ा सा ड्रॉप कर लेते हैं. दैट इज एन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंपोनेंट्स ऑफ computer system. Basically when we are talking about the component of computer system, so it consists of the 7 elements. That is in hardware. First one is the hardware, second one is the software, third one is the humanware, people. Okay, and apart from this, some of the important components which are also used in the computer system, that is in procedure,
इट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस मीन्स किसी काम को करने के लिए हम जो सीक्वेंस फॉलो अप करते हैं उसे प्रोसीजर कहते हैं. डाटा कनेक्टिविटी, डाटा कनेक्टिविटी, ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ ली है. ओके, सो दीज आर द बेसिक एंड वन मोर थिंग इज देयर. Hardware, software, humanware, procedure, data and connectivity. Okay, as well as we discussed in the last few videos, that is an utility of a computer system. So what are the utility of the computer system? So हम लोगों ने एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं. तो उसी बेसिस पे हम कंप्यूटर्स की यूटिलिटी भी बता सकते हैं. वही यूटिलिटी जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की है, वही सेम यूटिलिटी हम लोग पॉजेस करते हैं, फॉलो करते हैं इन द यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. दैट इज एन स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड रिट्राइवल. लिमिटेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कंप्यूटर सिस्टम की. दैट इज एन कॉमन सेंस, लैक ऑफ कॉमन सेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस. एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू. अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं. आज जो कुछ नई चीजें पढ़नी है वो ये है कुछ न्यू थिंग्स, न्यू टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, एंड ऑलमोस्ट इट इज एन लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ योर यूनिट. क्योंकि हम लोगों ने कई दिनों से मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लास्ट यूनिट को ही पे डिस्कशन किया है कि व्हाट दैट इज एन फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट 4th इज कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग एंड नंबर 2nd इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो उसको लिख भी लेना कॉपी में, क्योंकि 1 मार्क्स में जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आप जानते हैं, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम? सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट. इट इज an integrated set of components. ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट है, जो डिफरेंट कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, फॉर collecting, storing and processing data, and processing data for delivery information, for delivery information, delivery, sorry for that, delivery information, knowledge and digital products, knowledge and digital products. कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता देना 1 मार्क्स में कि what is an information system. So information system, it is an integrated set of component for collecting, storing and processing data for delivering information, knowledge and digital products. Means information system एक integrated set of component होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें, नॉलेज जनरेट कर सकें, और उस इंफॉर्मेशन को एज अ प्रोडक्ट, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट हम लोगों को सर्व कर सकें. ये यानी बेसिकली एक रिपोर्ट बनाकर हम फाइनली अपने मैनेजमेंट्स को प्रेजेंट कर सकें. ओके, सो दीज आर द बेसिक मीनिंग ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, दैट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शंस processing system
इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। A transaction processing system is an information processing system for business transaction involving the collection, modification and retrieval of all transaction data। यानी टीपीएस क्या है? टीपीएस एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। टीपीएस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, TPS is an information system for business transaction. For what? For business transaction involving the collection, modification and retrieval of all transaction data। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द इवेंट्स मीन द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी डे टू डे, यू नो वेरी वेल, हम गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो बिजनेस में एक दिन में कई तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन्स से रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्ट को पता करने के लिए, फर्स्टली वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है, ऑल दी ट्रांजेक्शन, हम उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्राइव करते हैं, ओके, ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन डाटा। यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन डाटा हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्राइव करते हैं, ओके। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भी हैं, जैसे अगर आप, द पर्पस ऑफ टाइपिकल टीपीएस इज टू रिकॉर्ड, process, validate and store transaction that occurs in the various functional areas of the business or for subsequent retrieval and usage। कुछ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डाटा को हम ऐसा सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि अगर वो ट्रांजेक्शन बार बार होगा तो उस ट्रांजेक्शन को हमें बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश विड्रॉवल एट एन एटीएम। एटीएम एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपके पास एक कार्ड होता है, आप कार्ड को एंटर करते हो, वो आपके उस कार्ड के बेसिस से क्या लेता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बेसिस पे वो सारे डाटा को लेता है और आपसे एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए और कह सकते हो एक एथोराइजेशन के लिए आपसे पिन मांगता है। आप पिन डालते हो और जितना आप इंस्ट्रक्शन देना चाहो, जैसा इंस्ट्रक्शन देकर पैसा निकालना है, बैलेंस चेक करना है, मनी ट्रांसफर करना है, पिन चेंज करना है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसमें वो डाटा को क्या करता है? एक तरह से कलेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसको रिट्राइव कर सकता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज which is very useful in our organization, especially in the management field, that is a management information system। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था कि what is a management information system। बेसिकली यू नो वेरी वेल, हर बिजनेस में दो तरह की स्टाफिंग होती है। एक होता है मैनेजमेंट स्टाफिंग और एक होता है ऑपरेटिंग स्टाफिंग। मैनेजमेंट स्टाफिंग का मतलब होता है कि जो लोग पूरे ऑपरेशनल स्टाफिंग्स को मैनेज करेंगे, यानी ऑपरेशनल स्टेज पे कह लो और एक मैनेजमेंट स्केल पे कह लो। और आप लोगों को पता है मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो टॉप लेवल को एक तरह से कह सकते हो मैनेजमेंट लेवल। सो मैनेजमेंट को मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल से डाटा चाहिए। डाटा चाहिए मीन्स उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड चाहिए, उनसे फीडबैक चाहिए। और इनपुट कौन देता है? टॉप लेवल इनपुट देगा और आउटपुट किससे चाहिए? सुपरवाइजरी लेवल से चाहिए। और उस टॉप, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाला कौन रहेगा? मिडिल लेवल। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही पॉपुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें होता क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम in which we provide the suitable and
कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द नीड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए उसे क्या चाहिए, बिजनेस की डाटा चाहिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के हम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो प्राइस इंक्रीज होने के लिए वो पहले से उसे डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इन्वेंट्री को ओवर स्टॉक कर ले, इन्वेंट्री को और अधिक खरीद लें एट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो उसके लिए उसे अपने स्टोर कीपर से या स्टॉक डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और स्टॉक डिपार्टमेंट कंसल्ट करने तभी जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास या मैनेजमेंट के पास, जब उसके पास उसको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, पहले मैनुअली होती थी, लोग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते थे, अब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो वहां कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या है, डिसीजन लेने के लिए उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए या अवेलेबल होने चाहिए। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बाय विच वी टेक अ सुटेबल डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली मैनेजमेंट क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उस डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। डाटा का मतलब क्या है, अगर एक बिजनेस में हम कहें तो डाटा मीन्स क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसमें दोनों तरह के ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो बिजनेस को मॉनेटरी टर्म में इफेक्ट नहीं करते लेकिन क्वालिटेटिव चीजों में इफेक्ट करते हैं। बट क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइक हो गया बिजनेस में, तो स्ट्राइक हुआ तो ये इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी ने लीव ले लिया या कह लो कि गुड्स हमने परचेस किया लेकिन हमारा गुड्स क्या हो गया, लॉस बाई फायर हो गया, जल गया, तो उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी बिजनेस में ऐसी होती हैं विच कैन बी इजिली मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इंसिडेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेने से पहले डाटा को कलेक्ट करने के लिए दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वेदर इट इज एन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी उससे एक स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट करता है। फिर उस रिपोर्ट को लोग स्टडी करते हैं, ठीक, स्टडी करने के बाद लोग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आपको पहले भी बताया गया है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड इन टेकिंग वेरियस डिसीजन। MIS is viewed and used by management at many levels such as operational, tactical and strategic. MIS is the supportive of the institution's long-term strategic goals and objective. And MIS is basically concerned with processing data into information which is then communicated to various departments in an organization for the appropriate decision making. Okay, so आई होप कि आज आपको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने आज? कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली। So after completing the last unit of your syllabus, that is in computers and accounting and computerized accounting system, let's we move to the next unit of your syllabus, that is in unit number 3, financial statement. Basically जो ये unit है उसमें जो ये common chapter है that is in financial statement, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो है विदाउट एडजस्टमेंट, यानी जिसमें एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन।
एंड सेकेंड वन इज अ विद एडजस्टमेंट। सो अगर आप अपनी बुक उठा के देखे होगे अभी तक, वैसे मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा लिया है, लेकिन अगर आप सेकेंडली रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन सी दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे वीडियोस बने हैं, तो उसमें जो पहला सेगमेंट है, पहला पार्ट है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसका चैप्टर का नाम आपकी बुक में होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, एंड सेकेंड है विद एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है विद एडजस्टमेंट। सो दोनों ही चैप्टर आगे पीछे ही हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लासेस में बता दिया है कि व्हाट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साल के एंड में बनाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस का क्या पता कर सकें। दो चीजें, टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, मतलब वो बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है कि नो ट्रेंड है। ऑल द थिंग्स आर बी फाउंडेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वन मैन आर्मी, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ वन पर्सन का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, एक बंदे का, यानी कि वही उस बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा, और सारे डिसीजन, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द वन पर्सन। सो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में फर्स्टली वी प्रिपेयर दी ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, एंड सेकेंड वी प्रिपेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, so in the financial statement of sole proprietorship, firstly we prepare the profitability statement, that is an trading account which include a trading account and profit and loss account, and second one will be a positional statement which is include only one statement, that is in balance sheet. Okay, profitability statement को हम लोग income statement भी कहते हैं। सो अगर आप बुक में देखोगे तो यू कैन सी दैट कि इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप there are basically two statement are included in it. The first one is the income statement, second one is the positional statement. In the income statement we prepare the trading account and profit and loss account, and in the position statement we prepare the balance sheet. बार बार मैं एक ही चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कम से कम थ्योरी तो पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसका इसमें कितने स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होता है। सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ओके, सो फर्स्ट आप लोग वन बाय वन इसको लिखते भी चलो कॉपी में। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। इन द बैलेंस शीट वी फाइंड आउट दी कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस एट द एंड। यानी विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट हम बिजनेस क्या पता करते हैं, कैपिटल कितना है बिजनेस का, लायबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितनी है, कब, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर डे। ओके, सो आफ्टर दैट next we discuss about the users of financial statement. Why we prepare the financial statement? हम financial statement क्यों बनाते हैं, यानी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसे एट द एंड ऑफ द ईयर पता होना चाहिए ना कि उस बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है,
कैपिटल, कैपिटल मतलब जितना पैसे उसने शुरू में इन्वेस्ट किया था, अब उसका कैपिटल कितना है, नाउ कैपिटल। लायबिलिटीज मतलब अमाउंट हम कितना देते हैं, उधार जिसे कहते हैं। एंड एसेट्स मतलब उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, नाउ। सो कुछ चीजें जो होती हैं जो हर यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता करना चाहता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल statement. So why we prepared the financial statement? To communicate the relevant information to the users. अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं ताकि उसको उसके इंटरेस्टेड यूजर हैं उसको यूज कर सके। जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है जिसमें आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी जो एग्जामिनेशन है UT1, हाफ ईयरली, UT2 एंड फाइनल एग्जामिनेशन की एक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होती है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वैसे ही बिजनेस भी अपना एट द एंड ऑफ द ईयर अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसमें वो पता करना चाहता है कि इस साल उसने जो भी एक्टिविटी की उससे उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट कैन डिसाइड अ सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट द कंपनी और अबाउट द बिजनेस। यानी बिजनेस के बारे में अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कल क्या थे, आज क्या हैं और आगे क्या हो सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो इनके अपने अपने डिफरेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। जैसे पहले तो हम यूजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड विद द टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इंटरनल यूजर एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, हर इंफॉर्मेशन के बारे में पता करना चाहते हैं। जैसे ओनर्स, वो बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सेकंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को तो पता ही आपको, मैनेजमेंट को अगर पता नहीं होगा बिजनेस की इंटरनल इंफॉर्मेशन सो वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता। थर्ड वन इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो ही सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, एम्प्लॉय ही सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन उसे रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल यूजर की अगर हम बात करें तो ओनर एंड मैनेजमेंट आर रेडी टू यूज द इंफॉर्मेशन डेराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसे ओनर और मैनेजमेंट किस लिए यूज करना चाहता है, बिकॉज ऑफ टू टेक अ डिसीजन, टू टेक अ रिलेवेंट डिसीजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। एंड एम्प्लॉय क्यों लेना चाहता है, क्योंकि वही तो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वही तो इंफॉर्मेशन बना रहा है, और वो इसलिए भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है ताकि वो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख सके, फ्यूचर देख सके कि क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंटिन्यू रखना चाहता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे ज्यादा सेफ और सिक्योर दिखने को मिल रहा है। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल यूजर, तो एक्सटर्नल यूजर किसी न किसी रीजन से बिजनेस की इंफॉर्मेशन को टेकअप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर उसको सफिशिएंट रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, सेकेंड विल बी अ क्रेडिटर, वो ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने जो पैसा एडवांस दिया है कंपनी को वो पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है। एंड गवर्नमेंट देखना चाहती है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट, बैंक्स, as well as financial institution. So you can see that कि all the external users as well as the internal users are ready to show all the relevant information of the business because of their need, क्योंकि उनको कोई ना कोई नीड है उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि अगर उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो अपने फील्ड से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो आई होप आज हम लोगों ने पूरे ऑनलाइन क्लास, पूरे इस क्लास में, वीडियोस में, फर्स्टली वी डिस्कस्ड एंड समराइज
सम अप कह सकते हो, कंक्लूड कह सकते हो, वी कंक्लूड द टू इंपॉर्टेंट things. The first one is the computerized accounting system and computers in accounting system, computer in accounting, and thereafter हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, that is an financial statement of sole proprietorship without adjustment. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.